آدمی گھر سے باہر تو ہیرو ہوتا ہے لیکن گھر میں زیرو ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ فرماتے تھے میری حرکات اور سکنات جو میں رات میں کروں اس کو دن کے اجالے میں بیان کرو، میں چھپ کر کروں تم چھتوں پر بیان کرو. آپ کی زندگی بے مثالی تھی. آپ گھر کے بھی ہیرو تھے، باہر کے بھی ہیرو تھے. آپ کی 9 بیویاں تھیں، کسی بیوی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، آپ کی برائی بیان نہیں کر سکتی. آپ اندر کے بھی ہیرو، آپ باہر کے بھی ہیرو. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، نبی کو مانتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. خوش نصیب تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ پر جہنم کو حرام کر لیا تھا. نبی وہ ہیں جس نے اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، وہ جنتی ہے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اسی لیے جنتی کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نبی پر ایمان لائے. تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کا چال، اسی کی چلن، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں ہو باہر میں ہو، ہر حال میں ہمیں نبی کی زندگی پر عمل کرنا ہے. کھانے میں، پینے میں. صحابہ کرام کو دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، نبی کا نوکر، نبی کا چاکر بن کر. نبی کی خدمت کی 10 سال. اور انس کی قسمت کا کیا کہنا ہے، انس کی ماں کا کیا کہنا ہے. ابھی انس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ماں نے خواہش کی، درخواست کی، دعا کہ اللہ اگر مجھے کوئی بیٹا عطا کیا تو میں محمد کا خادم بناؤں گی. یہی ساری چیزیں ہم میں اور آپ میں آنی چاہیے. اے اللہ اگر اولاد عطا کی تو نبی کا وارث بناؤں گے، قرآن و سنت کا وارث بناؤں گے. کیسی مائیں تھی کہ دعائیں کرتی ہیں کہ اگر اللہ تو نے بیٹا عطا کیا تو میں نبی کا خادم بناؤں گی. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہیں، اولاد ہوتی ہے، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بڑا ہو کر گاؤں کا چودھری بنے گا، پہلوان بنے گا، ہمارا سپورٹر بنے گا، گھر کا مالک بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن انس کی ماں منت مانتی ہے کہ نبی کا خادم بناؤں گی. تو ہمیں بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو ہم نبی کا خادم بنائیں گے، دین کا خادم بنائیں گے، قرآن و سنت کا سپاہی بنائیں گے. ان ارادوں کے ساتھ ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے. یہی ہماری سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمن سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے بلا وجہ. آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے، پہنچاتے. لوگ آپ کو اس کے بدلے میں گالیاں دیتے. یاد رکھو یہ سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم جب اچھا کام کریں گے دنیا ہمیں نشانہ بنائے گی، ہمیں برا بلا کہے گی. نبی کو برا بلا کہا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی. اللہ اکبر. ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی تھی گلیوں میں. کسی نے آ کر کہا کہ تیرے بابا کو دشمنوں نے مارا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے.
नन्ही सी फातिमा दौड़ती हुई भागती हुई अपने बाप को देखती है कि दुश्मनों ने मारा है। नन्ही सी बेटी फातिमा आसमान की तरफ निगाह उठा कहती है, अल्लाह मेरे बाप को क्यों मारा है? आपने तो जिंदगी में किसी को बुरा भला नहीं किया है, किसी को बुरा भला भी नहीं कहा है। अल्लाह मेरे बाप का क्या कसूर है कि इसको इस कदर मारा गया है? अल्लाह मैंने तो उस दिन भी देखा कि मेरे बाबा जान नमाज पढ़ रहे थे, कुफ्फार और मुशरिकीन हाथ में रुमाल लेकर गले में दबा रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, फिर भी आप नमाज पढ़ते रहे, एक लफ्ज भी जुबान से दुश्मनों को न बद्दुआ दी न बुरा लफ्ज कहा। याद रखें, जिन लोगों का मकसद ये हो कि दुनिया में अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए, दीन फैलाया जाए, उन लोगों को ऐसी तकलीफ़ें और मुसीबतें दी जाती है, ताने दिए जाते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट और मंजर मकसूद होता है उससे हमें हटना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपने काम को करते जाएं। इसमें परेशानियां हैं, दुनिया में मुसीबतें हैं, लेकिन मरने के बाद भी दुनिया आपकी तारीख लिखेगी। कैसे नौजवान थे, ऐसे दाढ़ी वाली थे, जिस गली से गुजरते मर्द औरतें घरों में घुस जाती थी, उसका अदब व एहतराम करती थी। यही मकसद है सीरत बयान करने का कि हम अपनी ज़िंदगी सवारे नबी की सीरत को पढ़कर सुनकर अपनी ज़िंदगी में हम अपने 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 अखलाक व आदाब में हम बसाएं नबी की सीरत को। हज़रत फातिमा कहती है कि मेरे अब्बा ने तो आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा। ये नबी की चहती बेटी जो ये कहती है। एक मर्तबा आपके अखलाक देखें, समामा यमन का गवर्नर पकड़ा हुआ लाया गया, मस्जिद नबवी में खंबे में बांध दिया गया। दुश्मन था, बहादुर था, दिलेर था, फौज का कमांडर था, मोटा लहीम शहीम था। आपको पकड़कर मस्जिद नबवी में बांध दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई कि यमन का गवर्नर समामा हुआ आया हुआ पकड़ा हुआ लाया गया है। आप तशरीफ लाते हैं। देखा, समामा के पास पहुंचे। समामा ने नबी के आने की खबर सुनी, अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। नबी आए, हालात मालूम के समामा क्या हाल है। समामा निगाह उठाकर नहीं देख रहा, नीचे झुकी हुई है। कहा कुछ नहीं है। नबी साहबा से पूछते, क्या तुम लोगों ने उसको डांटा है, कुछ बुरा भला कहा है, तुमने कोई तकलीफ पहुंचाई है? समामा जवाब देता है कि हमें कोई किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, ना हमें कोई तुम्हारे तकलीफ की परवाह, हमें कोई खौफ नहीं है। नबी ने कहा, जरा हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ निगाह उठाकर देखो। मस्जिद नबवी में साहबा करम मौजूद हैं, हज़रत उमर फारूक जैसा दिलेर शुजा वहाँ मौजूद है। समामा जवाब देता है, क्या नबी, हम तेरे चेहरे की तरफ क्या देखें? हमने रूम और ईरान के बादशाह देखे हैं, हम तेरे चेहरे की तरफ नहीं देख सकते। इतना गुस्सा था उसके अंदर, इतनी नाराजगी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, नहीं देखता, नहीं देखे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर हालात पूछे, फिर वही जवाब दिया कि जाओ, मैं नहीं देखता। नबी को कहा कि तेरा बदसूरत चेहरा क्या देखूं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक का तलवार हाथ कांपने लगा कि अभी नबी हुक्म देंगे कि इसकी गर्दन उड़ाई जाए, मेरी बेइज्जती करता है। लेकिन वो मुस्कुराने वाला मुस्कुराया। भाई, बड़े लोगों का जो काम होता है ना, वो हंसी में टाल देते हैं।
नबी मुस्कुराया, अच्छा नहीं देखता मत देख, हमारे साहबा को देख ले। कहा कि नहीं, मैंने रूम और ईरान की बस्तियां देखी हैं, सबसे बुरी कौम अगर है तो तुम्हारे लोग, यानी साहबा को बुरा भला कहा। आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, आपने फिर कोई गलत जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि समामा बड़े मुल्क का हुक्मरान है, जाओ हम तुमको रिहा कर देते हैं, हम तुमसे कोई कुछ नहीं चाहते, तुम्हें बदला लेना नहीं चाहते हम। साहबा को कहा कि उसको इज्जत से ले जाओ, इज्जत से यहां मदीने से बाहर रुखसत कर दो, अपने मुल्क चला जाए। समामा जो दुश्मन था उसको छोड़ दिया गया, चले गए। कहते हैं कि जब मैं जा रहा था दिल में ख्याल आया कि ऐसा दिलेर आदमी जिसके गल में मैंने गालियां दी, मस्जिद में मैंने तौहीन की, बेइज्जती की, दुनिया तो जूते मारती, बदले पर तुलाती, लेकिन ये कैसा शख्स है कि अपने घर में गालियां खाकर भी मेरी इज्जत करता है, अखलाक का मुजाहरा करता है और कहता है कि इज्जत के साथ ले जाओ, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जरा इस शख्स को देख तो लूं, उसके चेहरे को तो देखूं कैसा है। कहता है कि मैं जैसे निकला छुप के मैंने ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लिया। जब नबी का चेहरा देखा, भागता हुआ तेज जा रहा है, जाकर वहां गुस्ल करता है, नहा धोकर वापस मस्जिद नबी में आकर साहबा के साथ बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने देखा समामा जो अभी हमारी तौहीन कर रहा था, साहबा कराम की बेइज्जती कर रहा था और बुरा भला कह रहा था, और यहां नहा धोकर गुस्ल करके बैठा हुआ है। कहा क्या मसला है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपको बुरा भला कह रहा था तब मैंने आपका चेहरा नहीं देखा है, जब मैंने आपका चेहरा देखा मेरे कदम तो आगे की तरफ थे लेकर मेरा दिल यहां लटका हुआ था। आपका मैंने चेहरा देख लिया, सारी जिंदगी में आपका गुलाम बनने जा रहा हूं। तो लोगों, नौजवानों, ये होते हैं काम जिनको दीन का काम करना होता है। गालियां भी सहनी पड़ती है, तकलीफें उठानी पड़ती है, मुसीबतें उठानी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। जब मशीन को आगे बढ़ाना होता है तो याद रखो मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती है। नाम उन्हीं के लोगों के होते हैं जो दुनिया में वो गढ़ते हैं, उधर से तना उधर से तना, उन तमाम चीज़ों को वो अबूर करके बाहर निकल कर जब आते हैं तब दुनिया उनकी कदरों कीमत जानती है।